Good evening, students. So let us continue where we left in the last lecture. So this is the second lecture in the series of Unit 5. Last time we have seen what is the probability and what is the probability of equally probable events. Now we will see the more concepts like multiplication rules, permutation, combination, etc. Uh, so let us start with the possibility tree. So possibility trees, read this question carefully. Team A and B are play each other repeatedly until one wins two games in a row or total of three games. One way in which tournament can be played is A to win the first game, B to win the second, and A to win third and fourth game. Denote this by writing the event A, B, A, A. Since A wins two games in a row, we can say that A is a winner. Or we can also use the second formula, that is A wins total of three games, therefore A is a winner. So we have to find what are the possible ways in which tournament can be played, and assuming that all ways are playing tournaments are equally likely, what is the probability that 5 games are needed to determine the tournament winner. Okay, so let us first draw the tree. अभी ट्री कैसे ड्रॉ करते देखते हैं. Suppose this is my starting point. The first game will have two outcomes. What are the two outcomes of first game? Either A can win or B can win. ठीक है. Then we have again two options. Again we'll have A win or B win. Since A win twice in a game, we don't need to take the tournament further. So we can start with this point. This point again we have two options. That is A can win or B can win. So if this is played, A wins first game, B wins second game, A wins third game. So we can continue further. Either A can win the next game or B can win the next game. Then we will stop. Again, यहाँ पे देखो A B, and then again if A is winning, then A is a winner because we have first game A wins, second game B, then third is A, then B, then A. Okay, we will stop here. If B wins the game, again B wins two games in a row, so we can say that B is a winner here. Okay. Now if this is the case, let us move further. Since B wins two games over here, we will stop over here because B wins here two games in a row. यहाँ पे B क्या कर रहा है, दो गेम्स लगातार जीत रहा है, इसलिए B is the winner. Let us go further. Here from here onwards we have two maps, that is A can be a winner or B can be a winner. ठीक है. So this is my first game, this is my second game, this is my third game, this is my fourth game, and this is my fifth game. ठीक है. Let us see, A अगर जीता तो उसके बाद भी दो पॉसिबिलिटी होगा, either A wins और B wins. यहाँ पे A wins हो जाएगा. B अगर जीता तो दो पॉसिबिलिटी होगा, either A wins और B wins. Since B wins two games in a row, we will stop here, otherwise we will move forward. Here we can have either A wins, then A wins two games in a row, we will stop here, or B wins, then since B wins three games in a row, we will stop here. What about next? Just a minute. Okay. Since यहाँ पे B wins two games in a row, we will stop over here. So these are all the possibilities. So let us write down the possibilities. From start, we can have the 10 games as follow. First is AA, and in this case, A is winner by the first rule, which says that two games in a row. What is the second possibility? We have A, B, A, then second game B, third game is A, fourth game is again A is the winner. Third possibility we have is, ये देखो,
ए बी ए, आपको रूट तक जाना है, ए बी ए, विनर तक जाना है, ए बी एंड ए, ठीक है। देन फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है देखते हैं, ए बी बी, so let us write down over here a b and then again b. Next is ABB, fifth game, A B B. In this case B is a winner, in this case B is a winner. First three games में A winner है either by the 2 games in a row or 3 games total. Sixth game कैसे possible है? What is the sixth game? BA, that is BAA. सेवेंथ गेम क्या पॉसिबिलिटी है सेवेंथ गेम का? BA or I can write 8th game BAB, that is BAB. Ninth one we have BABB, and the last game 10th one is BB. So how many ways tournament can be played? So write down the answer. How many ways? There are 10 ways. और कैसे डिटरमाइन किया हमने? ट्री से डिटरमाइन किया. So we traveled. So let me travel so that you will get. मैं पाथ बना देता हूँ ग्रीन लाइन से. पहला पाथ ये है दिस वन ए, देन ए बी, यहाँ से बी गया, फिर ए गया, फिर ए गया, ऐसे वाला पाथ बना. सो यू हैव टू ट्रैवल टिल द एंड ऑफ द पाथ. जब तक पाथ एंड नहीं होता है तब तक आप ट्रैवल करते रहोगे. ए से स्टार्ट किया, बी, देन ए, वी रिटर्न इट एज ए बी ए सेकेंड टाइम, देन थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन. So there are many possibility. Total we have written 10 different possibilities. So I can write over here there are first का question क्या है? How many ways tournament can be played? So how many ways? 10 ways in which tournament can be played. Tournament can be played. Okay. What is B part? What does B part says? Assuming all the ways of playing tournament equally likely, what is the probability that 5 games are needed? अभी इसमें बताओ मुझे कौन कौन से गेम में 5 गेम लगते हैं. इसमें 2 ही गेम लगे, इसमें 4 गेम लगे, इसमें 5 गेम लगे, इसमें 5 गेम लगे, इसमें 3 ही गेम लगे, इसमें भी 3 ही गेम लगे, यहाँ पे 5 गेम लगे, यहाँ पे 5 गेम लगे. सो हाउ मेनी वेज वी हैव? In 4 ways we need 5 games to be played to decide winner. To decide winner. ठीक है, अपने को 4 गेम लगे इसलिए therefore the probability of this event, as you pointed out, it is number of elements in event E upon number of element in set S. So total कितने गेम पॉसिबल है? 10 games are possible. 10 ways are possible, out of which 5 ways in which 5 games are needed. So 4 by 10, what is the answer? If you simplify, it comes out to be 0.4. This is your answer. Okay.
Then there is a multiplication rule. Let us see how can be this possibility tree can be expand further to have the multiplication rule. मैंने इस मल्टीप्लिकेशन रूल का प्रैक्टिकल ऑलरेडी लिया है साइलैब में, तो ऑलरेडी आपने वो प्रैक्टिकल किया हुआ है, उसमें भी मैंने थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन रूल एक्सप्लेन किया था, बट अभी और ज़्यादा अच्छे तरह से आपको समझ में आएगा. कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल. Suppose a computer installation has 4 input-output units A, B, C, D. Input-output units मतलब क्या होता है? कीबोर्ड आपका इनपुट यूनिट हुआ, प्रिंटर आपका आउटपुट यूनिट हुआ, मॉनिटर आपका आउटपुट यूनिट हुआ. देन mouse you can say that it is an input unit. So you have the different types of input output units and 3 CPUs. CPUs है X, Y, Z. Any input output unit can be paired with any central processing unit. The how many ways are there to pair an input output unit with CPU? Okay, so let us first write CPU, क्योंकि आप CPU को जोड़ेंगे इनपुट आउटपुट यूनिट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट आउटपुट यूनिट्स. ठीक है, लेट अस गो लिटिल बिट हियर. तो CPU आपके पास कौन कौन से पॉसिबिलिटी है? यू हैव CPU X, CPU Y and CPU Z. CPU can be connected, ठीक है, to any output area. Sorry. So X can be paired with A, X can be paired with B, X can be paired with C और X can be paired with D. Similarly Y के लिए भी 4 पॉसिबिलिटी है. सो मैं ये जो ट्री है वो थोड़ा अलग से ड्रॉ करता हूँ. सो लेट अस सी, ड्राइंग का तरीका बदल देते हैं. लेट हैव CPU ओवर हियर X, Y and Z, and then you have input output unit. इनपुट आउटपुट यूनिट X के साथ कौन कौन सा जुड़ सकता है? A, B, C, D. Y के साथ भी A, B, C, D. Z के साथ भी A, B, C and D. 4 पॉसिबिलिटी है. तो X के साथ A, B, C, D. Y के साथ भी A, B, C, D. Z के साथ भी A, B, C, D. So total how many ways? टोटल पॉसिबिलिटीज कितना होगा? टोटल पॉसिबिलिटीज विल बी XA, XB, XC, XD, YA, YB, YC and YD, ZA, ZB, ZC and ZD. So there are 12 possibilities. ठीक है, क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? There are 3 CPUs, there are 4 input output unit, and anything is possible with anything. Anything can be paired with anything. So we can have, can we write this as total possibilities equal to 3 into 4 which is equal to 12. So हमने क्या किया? मल्टीप्लीकेशन किया. 3 पॉसिबिलिटी है, सेकेंड में 4 पॉसिबिलिटी है, therefore total is 12. So in case in step 1 we have selected CPU. In how many ways? 3 ways. And step 2, अगर सपोज समझ लो कि आपने CPU सिलेक्ट कर दिया 3 में से कोई भी तरह से, तो we can then join input output unit in how many ways? In 4 ways. तो अगर पहला स्टेप 3 तरीके से किया जाता है, सेकेंड स्टेप 4 तरीके से किया जाता है, तो दोनों में अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे टोटल पॉसिबिलिटीज मिलेगा. दैट इज गिवन बाय द मल्टीप्लिकेशन रूल.
सो यहाँ पे दो इसमें एग्जाम्पल देखा, अभी हम लोग इसका जनरल एग्जाम्पल लेते हैं। सो अगर आपके ऑपरेशन को के स्टेप्स लगता है, इफ योर ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ के स्टेप्स, द फर्स्ट स्टेप कैन बी परफॉर्म्ड इन n1 ways, second step can be performed in n2 ways, the kth step is performed in nk ways, then the total number of ways in which the original task can be performed is the product of all this, that is n1 into n2 into nk ways. So let us take the example. Suppose from your home to the railway station, okay, from the home to the railway station you can travel by, say, cycle, or you can travel by the bike, or you can travel by the auto. ठीक है, from railway station, ओके, रेलवे स्टेशन से आपके से कॉलेज जाने के लिए देर आर टू वेज, आइदर यू कैन गो, रेलवे स्टेशन के ऊपर बस स्टॉप है ठाणे स्टेशन पे, वैसे बस से जा सकते हैं या फिर ट्रेन से जा सकते हैं, ठीक है। सो देर आर टू वेज, सो टोटल हाउ मेनी वेज यू कैन ट्रैवल फ्रॉम होम टू कॉलेज गोइंग टू द स्टेशन? सो यू कैन से दैट आइदर आई कैन गो साइकिल, साइकिल के बाद बस लूंगा या ट्रेन लूंगा, बाइक से जाऊंगा, बाइक के बाद बस लूंगा या ट्रेन लूंगा, ऑटो से जाऊंगा, उसके बाद बस लूंगा या ट्रेन लूंगा। सो टोटल कितने पॉसिबल हुए? सो लेट अस काउंट द पॉसिबल वेज। मैं उसको डिफरेंट कलर से ये कर देता हूँ। आई कैन हैव दिस लाइक दिस, ये देखो, साइकिल से गया और फिर बस से गया, एक तरीका हुआ। इफ आई से गो डिफरेंटली, पहले मैं से साइकिल से गया, सेकंड में मैं यहाँ से गया, ट्रेन से गया, दो तरीके हो गए। थर्ड तरीका क्या था? पहले मैं बाइक से गया, फिर मैं बस से गया, तीसरा तरीका हुआ। फिर मैं बाइक से गया और फिर ट्रेन से गया, चौथा तरीका हुआ। फिर मैं ऑटो से गया, फिर बस किया, पांचवा तरीका हुआ। ऑटो से गया, फिर ट्रेन किया, सिक्स तरीका हुआ। सो टोटल मेरा क्या हुआ? टोटल मेरे 6 आउटकम हुए। तो इसको कैसे? फर्स्ट स्टेप कैन बी परफॉर्म्ड इन 3 स्टेप, सेकेंड स्टेप कैन बी परफॉर्म्ड इन 2 स्टेप, सो टोटल विल बी 3 into 2 by the multiplication rule, which can be performed in 6 different ways. So total will be 6 different ways in which I can travel from home to college. So इसका application देखते हैं। So let us take the application. A certain personal identification number, that is PIN, can be sequence of any 4 symbols which has 26 uppercase letter and 10 digits. ओके, सो आपके पास सेट क्या है? A B C D up to Z, and then you have the 10 digits. What is the 10 digits? 0 to 1 2 2 up to 9. So this many symbols are you have. How many total symbols you have? 36. पिन कितने का बनाना है? पिन 4 सिंबल्स का बनाना है। ओके, हाउ मेनी different pins are possible if repetition of symbols is allowed? So let us solve A. ये तो आपने तरीका बहुत बार देखा होगा। आपका पिन के लिए 4 कैरेक्टर लगते हैं, 1 2 3 4। पहले कैरेक्टर में कोई भी 36 डाल सकते हो, 26 लेटर्स प्लस 10 अल्फ़ाबेट्स। सेकेंड इसमें भी 36 डाल सकते हो, थर्ड इसमें भी 36 डाल सकते हो, फोर्थ इसमें भी 36 डाल सकते हो। क्यों डाल सकते हो ऐसे? Why you can put 36 out of 36 in the first page? क्योंकि रिपीटिशन ऑफ सिंबल इज अलाउड, मतलब पहला कैरेक्टर ए है तो सेकेंड कैरेक्टर भी ए डाल सकता हूँ। इसीलिए मैं लिखता हूँ इन द वर्ड्स एज रिपीटिशन इज अलाउड, एज रिपीटिशन इज अलाउड, therefore first place can be filled in 36 ways, second place can be filled in
36 ways. Third place can be filled in 36 ways and fourth place can be filled in 36 ways. Therefore, by multiplication rule, there are 36 into 36 into 36 into 36, that is 36 into 36 into 36 into 36. इसका प्रोडक्ट करो इक्वल टू, लेट मी टेक द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर नहीं एक्सेल शीट है चलेगा, इक्वल टू 36 raised to 4, that is control C, ठीक है। Pins are possible. So कितने मिले पिंस? 1679616 पिंस आर पॉसिबल। सो मैंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया, आप भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हो एग्जाम में, कोई रोक नहीं है कैलकुलेटर के यूज पे। ओनली थिंग इज जो स्क्रीन में प्रोवाइड किया है वो यूज करना। व्हाट इज बी पार्ट? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। फिर से 4 बनाओ। अभी देखो क्या होता है, रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा तो पहले में 36 जाएगा, अभी 36 में जो भी गया वो नंबर ब्लॉक हो जाएगा, वो फिर से यूज नहीं कर सकते। तो कितने बचे अपने पास? 35 बचे। थर्ड में कितने बचे? 34 बचे। और फोर्थ में कितना बचा? 33 बचा, क्योंकि ये जो दो है यूज किए हुए हो फिर से यूज नहीं कर सकते। तो 36 में से 34 बचे। 34 में एक यूज कर दिया तो 3 ब्लॉक हो गए, ये 3 यूज नहीं कर सकते, तो 36 में से 3 गायब कर दो, 33 बचे। सो टोटल कितने वेज है? मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, ये आपको लिखना है। हाँ, एग्जाम में आपको अगर ये एज अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया तो ये लिखना है। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 36 वेज, सेकेंड प्लेस इन 35, थर्ड प्लेस इन 34 एंड फोर्थ प्लेस इन 33। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ आंसर 36 इंटू 35 इंटू 34 इंटू 33 पिंस, विच इज इक्वल टू कितने होते हैं देखते हैं एक्सेल में। लेट मी राइट हियर इक्वल टू 36 into 35 into 34 into 33। यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V। ठीक है, so answer is this much, 141730। okay, now third question says that what is the probability that the pin does not have repeated symbol assuming all pins are equally likely। मतलब पहले केस में आपका कितना आंसर आया? 1679616। सेकेंड केस में कितना आंसर आया? 1413720। दैट इज द पिन विदाउट रिपीटेशन। सो सी पार्ट का आंसर क्या होगा? probability that pin doesn't have repeated symbol is probability of event E will be equal to what? Number of elements in event E upon number of elements in
original space. So let us see number of element कितना है 1413720 upon original कितना है 1679616। ठीक है, इसका आंसर निकालो, आपको मिल जाएगा। लेट मी टेक द आंसर। दिस इज इक्वल टू दिस divided by this. So what is the answer? 0.841692. So I will write only 2 digits 0.84. The probability is 0.84. ठीक है। Now when the multiplication rule is difficult to impossible to apply, consider this particular problem. 3 officers, a president, a treasurer, a secretary are to be chosen from the 4 people Anne, Bob, Sid and Dan. Suppose that for various reasons Anne cannot be a president and either Sid or Dan must be a secretary. Okay, then how many ways the officers can be chosen? Okay, आपका 3 पोजीशंस है, प्रेसिडेंट का पोजीशन है, ट्रेजरर का पोजीशन है, सेक्रेटरी का पोजीशन है, और आपको 4 लोग हैं। बट इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, जैसे कि एन प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, सीड डैन मस्ट बी सेक्रेटरी बनना चाहिए। हाउ मेनी वेज दैट कैन बी चूजन? सो लेट अस फर्स्ट, सिंस सेक्रेटरी के लिए सिर्फ सीड एंड डैन अप्लाई कर सकते हैं ना, तो पहले सेक्रेटरी का पोजीशन फिल करते हैं। सो लेट अस फिल फॉर सेक्रेटरी। ओके, तो सेक्रेटरी कैन बी आइदर सीड और डैन, यहाँ पे लिख देता हूँ डैन। ठीक है, सेक्रेटरी के बाद फिर किसके ऊपर है? एन कैन नॉट बी प्रेसिडेंट, तो पहले प्रेसिडेंट चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट सीड अगर ये है तो तेरे पास 3 ऑप्शन बचे। 3 ऑप्शन कौन कौन से हैं? व्हाट आर दोस 3 ऑप्शंस? व्हाट इज लेफ्ट? एन, बॉब एंड डैड। पर एन प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, सो वी कैन ओनली हैव बॉब एंड डैन। ठीक है, अगर डैन प्रेसिडेंट बना तो अपने पास सिर्फ सीड बचेगा और अपने पास बचेगा एन नहीं सॉरी बॉब, सीड और बॉब। ठीक है, एंड देन वी कैन पुट द सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट एंड ट्रेजरर। ट्रेजरर के लिए देखते क्या ऑप्शन है। अभी हमने ये पहले ही सिलेक्ट किया है, वी हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड सीड एज अ सेक्रेटरी, बॉब एज अ प्रेसिडेंट। सो अपने पास 2 ऑप्शन बचे। कौन से 2 ऑप्शन बचे? एन एंड वी हैव डैन। हियर सीड एंड डैन ऑलरेडी सिलेक्टेड, सो वी हैव ओनली 2 ऑप्शंस, दैट इज एन एंड बॉब। सीड डैन हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा? एन और बॉब में से कोई चीज कर सकते हैं, एन और बॉब। और बॉब हो गया तो हाउ मेनी सिलेक्ट वी कैन कर सकते हैं? डैन हुआ, बॉब हुआ, तो एन कैन बी ट्रेजरर और सीड कैन बी ट्रेजरर। सो बाय पॉसिबिलिटी, दिस आर माय पॉसिबिलिटीज। हाउ मेनी वेज पॉसिबल? 1 2 3 4। मैं फिर से गिन के दिखाता हूँ, यहाँ से हाइलाइटर लेके। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, this is 4, then this one is 5, then 6, then 7 और यहाँ से 8. So how many ways are possible? 8 ways. There are 8 ways to select officers. Okay. कोई अभी मैंने ऐसा ट्री बनाया, कोई और कुछ भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले ट्रेजरर को चुन सकता हूँ, ट्रेजरर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, मतलब आप कोई भी ऐसे पोजीशन फर्स्ट चूज कर सकते हैं। ऐसे मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। एन कैन बी ट्रेजरर, बॉब कैन बी ट्रेजरर, you can have seed also can be treasurer, or you can have Dan can be a treasurer also. ठीक है,
उसके बाद आप सपोज सेक्रेटरी चूज कर सकते हो। ठीक है, सेक्रेटरी चूज करेंगे अभी, फिर ट्रेजरर के बाद सेक्रेटरी चूज करेंगे, बाद में प्रेसिडेंट चूज करेंगे। सो लेट अस टेक द सेक्रेटरी। एन अगर ये बना तो एन कैन सेक्रेटरी सीड एंड डॉन, सेक्रेटरी सीड और डॉन ही बन सकता है, सीड और डैन। बॉब के केस में भी सेक्रेटरी कैन बन सकता है, सीड भी बन सकता है, या फिर डैन ही बन सकता है, और कोई नहीं बन सकता। यहाँ पे क्या हो सकता है, सीड अगर ट्रेजरर है तो सेक्रेटरी कैन बी ओनली डैन। डैन अगर ट्रेजरर है तो सेक्रेटरी कैन ओनली बी सीड, क्योंकि सीड को मैं 2 पोजीशन नहीं देना चाहता। देन आई हैव प्रेसिडेंट, एन कैन नॉट बी अ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ऊपर रूल्स इम्पोज है, प्रेसिडेंट एन कैन नॉट बी अ प्रेसिडेंट। तो सीड अगर ये है, एन सीड हो गए तो बैब एंड डैन बचे। So I can have Bob as a president, I can have Dan as a president. Ann and Dad हो गए, तो I can have Sid as a president और I can have Bob as a president. ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है, so let me take this down, इसको बहुत ही मैंने ऊपर ले लिया, तो let us take this down थोड़ा, ठीक है, and let's work out. सीड बॉब हो गया, एन कैन नॉट बी अ प्रेसिडेंट, सो प्रेसिडेंट के लिए सिर्फ क्या बचेगा, डैन ही बचेगा। अगर बॉब एंड डैन हो गए तो एन और सीड बचे, एन कैन नॉट बी अ प्रेसिडेंट, सो सीड कैन बी ओनली द प्रेसिडेंट। सीड एंड डैन हो गया, एन कैन नॉट बी अ प्रेसिडेंट, सो ओनली बॉब इज लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे भी ओनली बॉब इज लेफ्ट, कैन बी अ president. So we have how many selection? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In this case also you will get 8 ways. So possibility tree अगर आपने ड्रॉ किया तो आपको एक ही आंसर मिलेगा, चाहे कोई भी पोजीशन आप फर्स्ट ले लो, उसको सेम रूल अप्लाई करो। जैसे यहाँ पे रूल है, Anne cannot be president, you should not assign Anne to be a president. Secretary can be only Sid or Dan, you cannot assign Anne or Bob as a secretary. So वो जो सब रूल दिया हुआ है क्वेश्चन में वो सब फॉलो करो, उसका ट्री बनाओ, आपको अच्छे से हो जाएगा। You can get the answer and only one answer will be correct, that is 8 ways you can select the officer. Let's move forward. The important topic, but very simple, that is permutation. So what is the permutation exactly means? A permutation of a set of objects is an ordering of objects in a row. For example, अगर आपके पास 3 एलिमेंट है, उनको कैसे अरेंज कर सकते हैं, ABC, you can arrange them in ACB, CBA, BAC, BCA and CAB. इसमें क्या होता है, पोजीशन इन विच देयर ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। मतलब आपके पास कैसे है, आपके पास चेयर है, दिस इज माय फर्स्ट चेयर, दिस इज माय सेकंड चेयर, दिस इज माय थर्ड चेयर, आई हैव टू प्लेस द नंबर्स लाइक दिस। सो ये जो परम्यूटेशन है क्या बोलता है कि हाउ मेनी, इट इज अ अरेंजमेंट इन अ रो। और कौन सा अरेंजमेंट पॉसिबल है, इफ यू हैव सर्कल and you have to assign 3 rows. Then as it is a circle, you can assign this 1 2 3 or you can assign 1 2 3. It is like a common, मतलब गोल है तो आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है कौन सा एंडिंग पॉइंट है। यहाँ पे समझ में आता है यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ पे एंड करना है, आपको एक सीक्वेंस मिल जाता है। यहाँ पे आपको सीक्वेंस ही नहीं मिल रहा है, घूमते रह जाओगे, बट आपको सीक्वेंस नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए दिस सर्कुलर परम्यूटेशन, वो कैसे करना है वो आपके सिलेबस में नहीं है फिलहाल, तो हम लोग उसको नहीं लेंगे। सर्कुलर परम्यूटेशन को हम लोग सिर्फ लीनियर परम्यूटेशन लेंगे, दैट इज अरेंजमेंट इन अ रो और अरेंजमेंट इन अ लाइन, वो हम लोग कंसिडर करेंगे। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन is all you know is given by the factorial, that is n factorial. What is n factorial? What is the value? It is n into n minus 1 into n minus 2। कहाँ तक जाना है आपको, n से लेके डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक लेके जाना है। सो 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट इज गिवन बाय द
n factorial. In nothing but we have also seen the factorial notation. I goes from 1 to n and product of I. This will give me the factorial value of n factorial. Okay. Always remember there are properties, that is 0 factorial is equal to 1, 1 factorial is also equal to 1, n factorial is also equal to n into n minus 1 factorial. So these properties which you have already studied, you can free to use these properties anywhere in the questions. So let us take the questions on permutation. In how many ways can the letters in the word computer be arranged in a row? कितने तरीके हैं हम लोग को कंप्यूटर को अरेंज करने के? Okay, so let us write the answer of this. Computer has 8 letters, all are distinct. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, all are distinct, कोई रिपीटेशन नहीं है. Therefore the letters can be arranged in how many ways? In 8 factorial ways. What is 8 factorial? 8 into 7 into dot 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 up to 1. Can you tell me the value of 8 factorial? Let us go one by one. 1 into 2, 2. 2 into 3, 6. 6 into 3, 6 into 4, 24. 24 into 5, 120. 120 into 6 is 720. 720 into 7. And 720 into 7 कितना होता है? कैलकुलेट करो. 0 741 749 5040. इसको 8 से मल्टीप्लाई करो. 0 8 4 ज़ा 32. फिर क्या होगा? 5 8 ज़ा 40. सो आपको कितने मिले वेज? 40320 वेज. हाउ मेनी वेज आर देयर? 40320 is the way. Now what we want? We want arrangement in which CO should be come together. CO should be come together. So we will keep CO as single quantity, as single bundle, and remaining. अगर CO को कंसिडर फेंक दिया बाहर, CO को अभी कंसिडर मत करो, CO बाहर निकालो. कितने कैरेक्टर बचे? 6 लेटर्स बचेंगे. तो अगर CO को टुगेदर किया तो हम लोग CO का एक बंडल लेंगे और बाकी का 6 लेटर अलग अलग रखेंगे. सो वी हैव हाउ मेनी ऑब्जेक्ट? वी हैव 7 ऑब्जेक्ट्स. एक बंडल है, बाकी 6 लेटर्स है. टू बी अरेंज in a row. So how many ways this can be done? How many ways this can be done? Which can be done in how many ways? 7 factorial. What is 7 factorial? 7 into 6 into 5 up to 1. So again 7 factorial का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था. This is your 7 factorial 5040 and this is your 8 factorial. So which will be equal to 5040 ways. This can be done in 5040 ways. ये MCQs के लिए आ सकता है डायरेक्टली. What about this? If the letters of computer is randomly arranged,
देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड इवेंट, मतलब पहला इवेंट आपका सैंपल स्पेस बन जाएगा, सेकेंड इवेंट आपका इवेंट बन जाएगा, राइट। कंप्यूटर रैंडमली अरेंज में यहाँ पे है हाउ मेनी वेज कैन बी कंप्यूटर अरेंज, एंड सेकेंड क्या है, हाउ मेनी वेज द लेटर्स आर कमिंग टुगेदर. So what is the probability? Write down directly formula. Probability of E is equal to number of elements in E upon number of elements in S. कितने हैं number of element in E? 5040. Number of element in S 40320, which is nothing but 7 factorial upon 8 factorial. 7 factorial 8 factorial को मैं लिखूंगा 8 into 7 factorial. So this 7 factorial will get cancelled. You will get 1 by 8. So probability is 1 by 8, which is simplifies to 0.125, which is simplifies to 0.125. Okay. So this is how you will do this particular problem. Okay. Now we go to the next case, that is R permutation. Okay. What is an R permutation? R permutation of set of n elements is an ordered selection of R element taken from the set of n element. इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? Let me give you one example. You have 8 boys, okay, and you have 5 chairs. ठीक है, आपको बॉयज को 5 चेयर्स में बिठाना है, 1 2 3 4 5. ठीक है. सो हाउ यू कैन डू दिस? पहले पोजीशन पे कोई भी 8 पॉसिबिलिटीज है, सेकंड पोजीशन पे एक को बिठा दिया, 7 बचे, 7 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी. थर्ड पोजीशन पे 1 2 2 को बिठा दिया, 6 बच जाएंगे, 6 पॉसिबिलिटी बच जाएंगी. इसमें कितना पॉसिबिलिटी बचेगा? 5 पॉसिबिलिटीज बचेगा. और इसमें लास्ट में कितना पॉसिबिलिटी बचेगा? 4 पॉसिबिलिटी बचेगा. सो दिस कैन बी अरेंज इन 8PR. दिस इज ऑल्सो डिनोटेड बाय NPR. एंड द वैल्यू क्या होता है इसका? वैल्यू होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. लेट अस चेक दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट. 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4. इसको मैं क्या करता हूँ, इसको और आगे ले जाता हूँ, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. और यहाँ पे नीचे क्या लिखता हूँ, जो भी एक्स्ट्रा लिखा वो यहाँ पे लिख देता हूँ. सो दैट यू विल हैव 8 फैक्टोरियल अपसाइड 3 फैक्टोरियल डाउन साइड, विच इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 फैक्टोरियल. सो बेसिकली फॉर्मूला क्या आएगा आपका अरेंजमेंट का? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. NPR is equal to n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. ठीक है. सो यहाँ पे उसका फॉर्मूला दिया हुआ है. दैट इज द फर्स्ट वर्जन एंड सेकंड वर्जन विच वी ऑलरेडी शोन ओवर हियर. व्हाई इट इज कमिंग टू बी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. बेसिकली आप ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को कंप्लीट करते हैं 1 तक, और नीचे उतना ही प्रोडक्ट लेते हैं, जो एक्स्ट्रा टर्म लेते हैं वो नीचे लेते हैं. तो आपको नीचे n माइनस r फैक्टोरियल मिलता है, ऊपर n फैक्टोरियल मिलता है. सो लेट अस इवैल्यूएट. ओके, कंप्यूटिंग इवैल्यूएट P52. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P52? आपने अभी तक आज तक ये नोटेशन यूज किया होगा, मोस्ट प्रोबेबली 5P2. It is 5 factorial upon 5 minus 2 factorial. Calculate the value. 5 factorial is 120. 5 minus 3 factorial is 6. 6 1 2s are this. So how many ways? 20 ways. What is B part? 4 permutations set of 7 objects. That means I want to find how many elements? 7 elements, out of which I have to select 4 elements. This is also denoted by 7P4. Calculate the value 7P4. 7 factorial upon 7 minus 4 factorial. 7 minus 4 factorial कितना होता है? 7 factorial upon 3 factorial. 7 factorial का वैल्यू होगा
7 into 6 into 5 into 4 into 3 factorial upon 3 factorial will get cancel out. So 7 6 are 42, 42 into 20, 42 2 are 84, 84 840. So आपका आंसर होगा 840. What about C part? आंसर क्या होगा? 5 permutation and 5 symbols. ठीक है, which is equal to 5p5. इसका आंसर आता है 5 फैक्टोरियल, बट मैं इसको करके ही दिखाता हूँ सो दैट यू विल गेट आइडिया. 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन हाउ मेनी 0 फैक्टोरियल. 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1, सो डायरेक्टली 5 फैक्टोरियल का वैल्यू लिख दो, दैट इज 120. ठीक है, so this is how you will evaluate our permutation. You will evaluate our permutation. This examples we will do in the next, that is permutation of selected words. ठीक है, इसका जो examples है वो next lecture में करेंगे. We will stop over here.